اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں جرائم اور حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شام سے اب تک ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاک کالونی پرانا گولی مار میں 4 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ سائٹ سپر ہائی وے اور بلدیہ میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سٹیل ٹاؤن پولیس نے پولیس ملازم خمیسو جوکھیو کو قتل اور مقتول کی بیوی کو زخمی کرنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں جرائم اور حادثات کا خونی کھیل جاری۔ مختلف حادثات و واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ شیرشاہ کے علاقے میں شام سے اب تک ٹریفک حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ شیرشاہ پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، شناخت 45 سالہ آصف کے نام سے ہوئی۔ دوسرا واقعہ شیرشاہ ہونڈا کمپنی کے قریب پیش آیا جس میں نامعلوم گاڑی نے ایک شخص کو ٹکر مار دی جس سے وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ نامعلوم شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ پاک کالونی پرانا گولی مار میں 4 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ چولہے کے قریب پیٹرول کی بوتل اور جنریٹر موجود تھا۔ اوپر ہائی وے اللہ بخش گوٹ، فقیرہ کوٹ اور بلدیہ عابدآباد میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سپر ہائی وے میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس سے ایک شخص زخمی ہوا۔ شناخت 25 سالہ راشد کے نام سے ہوئی۔ کیمرامین شہریار علی کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ کراچی میں منشیات فروشی کا دھندا کڑی سے کڑی ملنے لگی۔ دھندے میں ملوث بڑے نام بھی سامنے آنے لگے۔ اداکار ساجد حسن کا بیٹا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ساحر حسن کے قبضے سے ½ کلو سے زائد منشیات برآمد ہوئی۔ اسپیشل مجسٹریٹ کی ملزم کو آج متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ جسکم کی دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف ریلی، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ پر لاٹھیاں برسا دی، سپاہی ایس ایس پی ساؤتھ کو بچا کر دور لے گئے، گن مین زخمی ہو گیا۔ شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ گورا قبرستان کے قریب رکاوٹیں لگائی۔ ریلی کے باعث ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہی۔ جی ایس این قومی محاذ کے کارکنوں کی شدید نعرے بازی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ہیوسٹن پاکستان اور ہیلپنگ ہینڈز کے ساتھ مل کر ساحل سمندر کی صفائی کے لیے مہم چلائی۔ اس مہم میں 200 بچے بھی شامل تھے جنہوں نے متعلقہ حکام کے ساتھ حصہ لیا۔ صفائی مہم کے دوران کمشنر کراچی حسن نقوی نے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمیں ساحل سمندر کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے۔ اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ سمندری اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق بچوں کو آگاہی دینا ہوگی۔ سمندری علاقے قدرت کی نعمت ہیں جن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر مختلف علاقوں میں پانی کی لائنوں کا مرمتی کام کیا جا رہا ہے۔ پانی کا رساؤ ختم ہونے سے لیاری، صدر، اولڈ سٹی ایریا، کلفٹن، چنیسر ٹاؤن، جناح ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور ضلع وسطی سمیت شہر بھر میں پانی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے پانی کی لائنوں کے رساؤ کو ختم کرنے کے جاری کام کا جائزہ لیا۔ ایم ٹی واٹر کارپوریشن نے متعلقہ حکام کو مرمتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اولڈ سٹی سبزی منڈی پر 48 انچ ڈایا لائن میں 3 لیکیجز تھے جن پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 12 مختلف پوائنٹس پر رساؤ کا کام کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں گیس کی قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ مختلف علاقوں میں رات میں 8.5 گھنٹوں سے زائد گیس لوڈ شیڈنگ، دن میں پریشر میں کمی کی شکایات بڑھنے لگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ موسم بدلنے لگا، گیس کی کمی برقرار۔ کراچی کے علاقے ملیر، لانڈی، اورنگی ٹاؤن، لیاری گیس کی کمی کا شکار۔ شہریوں کے لیے معمولات زندگی متاثر۔ شہری کہتے ہیں گیس غائب ہونے یا پریشر کم ہونے سے کھانے کی تیاری کا عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ کھانے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کرنے سے معاشی بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو 11 بجے گیس جاتی ہے، صبح 6 بجے آتی ہے۔ جب یہاں سے کاموں پہ سے جاتے ہیں نا بھائی، سمجھ لو بیگموں سے بولتے ہیں تو وہ کھانا گرم کر دو تو وہ پیپر پھاڑ کے تو چولہا جلاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ہمارے کو کھانا دیتے ہیں۔ گیس تو آتی ہے لیکن اس کا پریشر اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر روٹیاں پکا سکیں۔ سالن تو جیسے جیسے خواتین پکا لیتی ہے، روٹی ہمیں بازار سے ہی منگانی پڑتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روٹی مافیا کا بھی ریٹ سب سے زیادہ ہے، تو شہری بہت مشکلات میں ہے۔ گیس آ نہیں رہی، ہم لوگ گیس کے بل ادا کر کے تھک گئے ہیں۔ صبح بھی کھانا
ड्यूटी पे जाता हूँ, भूखा जाता हूँ और शाम में भी गैस नहीं आती, सुबह में नहीं आती। तर्जुमान सुई सौदरन के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फीडर से आने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना होता है। यौमिया लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है और दीगर इकदामात किए जाते हैं। सेहत के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि सिविल अस्पताल के ENT सर्जन्स का बड़ा कारनामा कुव्वत समात से महरूम 4 साला बच्चे की कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में 9 रुकनी टीम ने हिस्सा लिया। आपको अपडेट करें, सिविल अस्पताल के ENT सर्जन्स का बड़ा कारनामा कुव्वत समात से महरूम 4 साला बच्चे की कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में 9 रुकनी टीम ने हिस्सा लिया। सिविल अस्पताल के ENT सर्जन्स का बड़ा कारनामा कुव्वत समात से महरूम 4 साला बच्चे की कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में 9 रुकनी टीम ने हिस्सा लिया है। भीमपुरा में रमज़ान लूट लो सेल लग गई। 150 रुपये वाली चीनी 99 रुपये किलो में दस्तयाब। बेसन 280 रुपये के बजाय 160 रुपये में फ़रोख्त किया गया। ख़वातीन का रमज़ान बचत बाज़ार में रश लग गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। मुतवस्सित तबके के लिए सस्ता रमज़ान बचत बाज़ार, चीनी, आटा, मसालेजात समेत हर अशिया पर बड़ा डिस्काउंट। भीमपुरा में खरीदारी के लिए ख़वातीन की कतारें लग गईं। मार्केट में 150 रुपये वाली चीनी बचत बाज़ार में 99 रुपये किलो में दस्तयाब। बेसन 280 के बजाय 160 रुपए, कुकिंग ऑयल 500 रुपए के बजाय 380 रुपए, चक्की का आटा 450 जबकि मार्केट में 580 रुपए और मसालेजात 130 रुपए वाला पैकेट 99 रुपए में फरोख्त किया गया। ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं सस्ती अशिया फरोख्त करने का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। महंगाई के दौर में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल है ना, यहाँ पे सब में डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट ही मिलेगा आपको। और ये कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फ़ायदा उठा के ही जाता है। और हमारा मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत करना और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की खिदमत करते रहेंगे। ख़वातीन बोली, गरीबों के लिए अच्छा इकदाम है। तमाम अशिया पर ज़बरदस्त डिस्काउंट मिला। अगर यही बाजार हुकूमत लगाती तो गरीबों को कुछ नहीं मिलता। हाँ, सस्ते मिल रही है, सस्ता बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कई बहन लखोपति है, कोई भाई लखोपति है, कोई बहन गरीब भी होती है। भाई गवर्नमेंट लगाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर 150 रुपए किलो मिलती है, यहाँ पर है ना 199 रुपए किलो है, तो फायदा है ना हमारे लिए। तो गरीब आदमी तो ले सकते हैं, तो सब ले सकते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत भी मुतवस्सित तबके की मदद के लिए आगे आए और रमजान में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी का ऐलान करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अल खिदमत ख़वातीन ट्रस्ट पाकिस्तान के तहत फ़लस्तीनी ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों के लिए मेगा पैकिंग ड्राइव का एहतमाम। इमदादी सामान में 2000 से ज़ायद डिब्बे बनाए गए। इमदादी पैकेट NDMA के ज़रिए गज़ा भेजी जाएंगे। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखिए। गज़ा के मुतासिरा, जंगज़दा और मुस्तहिक मुसलमानों की इमदाद। अल खिदमत ख़वातीन ट्रस्ट ने इमदादी सामान भेजने का काम तेज़ कर दिया। कराची रबात सेंटर भादराबाद में सामान की पैकिंग जारी रही। 2 रोज़ा मेगा पैकिंग ड्राइव में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हिस्सा लिया। प्लास्टिक के बॉक्सेस में इमदादी सामान पैक किया गया। सामान में बेबी डायपर्स, सैनिटरी पैक, वॉशिंग पाउडर, अबाया, स्कार्फ, होडीज़, फीडर, बचगाना सूट और हाइजीन किट्स शामिल थीं। सामान की पैकिंग में मसरूफ़ तलबा और ख़वातीन का कहना था कि यहाँ पर सामान की पैकिंग अच्छी तरह हो रही है। मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत करते हुए अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पर अल खिदमत से आई हूँ और यहाँ पर सुबह से जो है वो 1500 पैकेज जो है वो हम तैयार कर चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं वो सब अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अभी टोटल 1500 बॉक्सेस बन चुके हैं और इंशाल्लाह कल तक हमारे 2000 बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। अल खिदमत ख़वातीन ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरपर्सन नवीदा अनीस का कहना था, अब तक अल खिदमत 25 बड़ी कंसाइनमेंट्स गज़ा के मजलूम बहन भाइयों के लिए भिजवा चुकी है। 25वीं खेप में 110 टन सामान भेजा गया है। हाँ जी, अल खिदमत ये सारा जो काम कर रहा है, पहले दिन से ही काम हमने शुरू कर दिया था और अभी तक हम 15 अरब का सामान वहाँ पहुँचा चुके हैं। अभी इस जो रीबिल्ड गज़ा है, जो डिस्ट्रक्शन के बाद जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद जब ये सारा काम शुरू हुआ है तो इसके अंदर 6 अरब का सामान पहुँचा चुके हैं।
3,000 टन 3,500 टन का सामान गया है, बाय एयर भी बाय शिप भी। अलखिदमत ख़वातीन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तमाम चीज़ों को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए जल्द गज़ा भेजा जाएगा। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। इस साल भी रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुस्तहकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। कौंसल जनरल वक़ीत अतीक और रमैती ने अपने हाथों से राशन की तकसीम का आगाज़ किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 3,000 से ज़ायद मुस्तहकीन में राशन तकसीम होगा। शेहा फ़ातिमा बिनते मुबारक की जानिब से राशन की तकसीम का आगाज़ काठोर से हुआ। कौंसल जनरल डॉक्टर वक़ीत अतीक का कहना था कि हर साल की तरह सिंध और बलूचिस्तान के अजला में हज़ारों ख़ानदानों को राशन तकसीम किया जाएगा। UAE की जानिब से 18 बरस से पाकिस्तान भर में रमज़ान के मौके पर राशन तकसीम किया जा रहा है। राशन में एक ख़ानदान के लिए 40 किलो आटा, 20 किलो चावल और 10 किलो चीनी शामिल है। खजूर 10 किलो, दालें 5 किलो, नमक, मसाला जात, बच्चों का दूध और मशरूबात होते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स में अफसरान को तरक्कियाँ देने का फैसला। 16 ग्रेड के अफसरान को 17 ग्रेड में तरक्कियाँ दी जाएंगी। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन सलीम राजपूत ने इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स मोहम्मद सलीम राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास कल पीर के रोज़ 11:30 बजे तगलुक हाउस के दूसरे फ्लोर पर होगा। इजलास में सीनियरिटी के लिहाज से 16 ग्रेड के असिस्टेंट टैक्सेशन अफसरान को अगले 17 ग्रेड के ओहदों पर तरक्कियाँ देने पर गौर किया जाएगा और अगले ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी भी दे दी जाएगी। मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के तहत रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के 8वें मरहले में 300 से ज़ायद ख़ानदानों को रोज़गार फराहम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के सदर फैसल नदीम का कहना था कि बेरोज़गारी, मायूसी और जराइम में इजाफे की बड़ी वजह है। हमने इंसानियत और एहसास के जज्बे से रोज़गार सहूलत प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम ख़ानदानों का मुआशी सर्कल चलाने का नाम है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रोज़गार के मौक़े पैदा करे। कराची बीच लग्जरी में NGO की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें जेल इंतज़ामिया ने कैदियों की तैयार करदा फ़न पारे नुमाइश के लिए रखे गए, जिसे नुमाइश में आने वालों ने खूब सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में हथकड़ियाँ पर जहनों में वुसअत, कैदो बंद की सोबतें, हुनर का कोई मोल नहीं। मोतियों से बने खूबसूरत रंगों में ढले ये फन पारे किसी आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि सेंट्रल जेल में कैदियों ने बनाए हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स कराची बीच लग्जरी होटल में NGO की निगरानी में लगाए गए हैं। सुपरिटेंडेंट जेल करीम अब्बासी भी स्टॉल्स पर पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैदियों को सपोर्ट करने के लिए ये इंतजाम किया जाता है। ये चीज़ें वो हैं उन इनमेट्स ने बनाई हैं जिनको सोसाइटी में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन ये चीज़ें बना के इनमेट्स ने प्रूव किया है कि हम सोसाइटी के एक अच्छे इंसान की हैसियत से, एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपने आप को प्रूव किया है। और जब वो रिलीज़ होंगे तो अपनी फैमिलीज़ के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ लाके और अपने फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ज्वेलरी हाथ से बनी अशिया समेत 70 से जायद स्टॉल्स नुमाइश में लगाए गए। मुंतजमीन का कहना था कि स्टॉल्स लगाने से पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है। नफ़रत जो है वो जुर्म से होनी चाहिए, मुजरिम से नहीं। तो ये बात साबित हुई आज का ये स्टॉल, इनका हुनरमंदी, इनका हैंडमेड सारी चीज़ें देखकर, और जो उनकी ज़ेनुइन नशोनुमा भी, यानी कि वो उनके लिए अपने काम के, अपने कारोबार के, जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो अपना कारोबार अपने हाथ से वो अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। इनकी हुनर है वो बाहर आ रहे हैं, ऐसे लोगों के जो इनके हुनर हैं जो नहीं दिखा सकते थे, इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो अपने हुनर उन्होंने दिखाया है। ये वाला स्टॉल हमारा जो है इज़ अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि सेंट्रल जेल में जो इनमेट्स हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट अपने हैंडमेड वाइल कैरिंग आउट द सेंटेंस बनाए हैं। उनके साथ डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके साथ एक पूरी टीम होती है, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं जो कि वो इनमेट्स जो हैं, इनमेट्स को उनकी क्राफ्ट बढ़ाने के लिए एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट उनको हेल्प किया गया है कि
کہ وہ اگر اپنا کرافٹ کہیں اور لگائیں تو پھر کس چیز میں وہ کام کر سکتے ہیں. ایک روزہ نمائش میں سٹالز کے ساتھ فوڈ کورٹ بھی بنایا گیا تھا جہاں بڑی اسکرین پر میچ دیکھنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. شہریوں کے لیے فری انٹری رکھی گئی ہے. کیمرہ مین سید دانیال، سٹی 21 کراچی.